screen? Is it visible? Okay. Okay, so good morning, হ্যাঁ student. Okay. So who is trying to join the class actually? Vishwajit Vera. Okay. So good morning, student. This is today we are going to start our new semester class. Okay. And the subject that I will be teaching is the pavement design. This is actually the elective subject. Okay. Those who there are two subjects under this code, which is your pavement design and another I think most probably tall design structure that will be teaching by your Sumit Kanjilal sir. Okay. So are you aware of this, everyone? This is an elective subject. Okay, the topic this pavement design is an elective subject. হ্যাঁ ম্যাম Okay, so it is confirmed that you people are taking this pavement design only, right? For this code C802. Okay, so C802D is pavement design and C802 I think C 2C is your tall design structure I think. Okay, so those who are present, so I am confirming that these students are taking these subjects. Okay, so let us start. And this subject will be little bit easier for you all. Why? Because we have already gained some knowledge about this subject. In which subject? In your previous semesters, not previous, in your sixth semester, there was a subject which is highway engineering. Okay, so under that subject, there is one module which was solely based on this topic, which was your pavement design, right? So here, then what is the difference in that subject and this subject? In that module, in that subject, in the sixth semester, we have only designed the pavement, two types of the pavement, which was your flexible pavement and your rigid pavement. Okay. Now in this subject, we will learn one more design, which is your overlay design. This flexible pavement and rigid pavement, they are most similar with that previous lectures. Okay. But your extra module is added, which is your the overlay design. So can you see the syllabus? This is your syllabus of this subject. Okay. The first module deals with the principle of pavement design. Here we will learn in more details about the subject. Okay. So principle of pavement design, under this topic we will learn what are the types of the pavement. We have already known different types of the pavement, right? Mainly we have learned broadly two, we have divided the pavement into two classification, which was your flexible and rigid. But here we will learn some other pavements also. Under the rigid, there are several other pavements. Okay, so we will learn in details. And concept of pavement performance, how we will measure the performance or how we will assess the or how we will evaluate that this pavement is performance is good or bad, in which basis we will say that this pavement is good or bad. So concept of pavement performance based on structural and functional failure of the pavement. Here also we will learn some different stresses in pavement developed in the pavement layers. Okay, so like different failures, then different types of pavement performance, different pavement design approaches. What are the different pavement design approaches? That also we will learn. Okay, one is empirical, theoretical, semi-empirical, like that. So all these are the method that we will learn. Another topic, another module is what? It deals with the traffic consideration in the pavement design. This portion is little bit of the traffic only. Okay, in the traffic engineering, you have learned that topic also in your highway engineering subject. Okay, so here we will see what are the different parameters, traffic parameters or the traffic factors that we need to consider for the pavement design, in pavement design. Say for example, what are the different types of the vehicle, what is the axle configuration. Can you please explain what do you mean by the axle configuration? किसी को idea है ये axle configuration क्या होता है? Anyone? भूल गए. एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है?
Suppose this is your vehicle. Okay. Suppose this is the front portion of the vehicle and this is the back portion of the vehicle. Here it has one wheel. This is one wheel. This is called the rear axle. Okay. And this is called, sorry, this is called the front axle. And this is called the rear axle. We are looking from the top. Okay. So the axle configuration is this one. If here it is only single axle, so this is your single axle vehicle. Okay. And here we can see that in a single axle there is either in the, you have to see either in the left side or in the right side. How many wheels are there in this configuration? How many wheels you can see? Only either in left or right, in any portion, any one portion. How many wheels you can see? This is single wheel, right? So single axle, single wheel. Okay, this is the top portion. Please don't get confused. This is, we are looking from the top. Okay, diagrammatic view, plan portion. So here it is single wheel and single axle. So the configuration of this vehicle is what? Single axle, single wheel. Okay, in many vehicles you can see there will be one more wheel. So this is what? Single axle, double wheel. yes, dual wheel, right? And in many cases you can see there will be one more axle. At the back there will be, you can see one more axle. So this is called the tandem axle. Okay, tandem means two axles. So tandem axle, dual wheel. Okay, or tandem axle, single wheel. So these are the axle configuration. Now why it is important, that we will learn. Ultimately, what is the purpose of the pavement? Anyone? ये pavement हम लोग design, what see, topic here is what? Pavement design. So what design means? What? Design of some parameters. ठीक है? Pavement is a structure. It is a layered structure. Okay, it is consisting of different layers laid one above the another. Okay, so the design of the pavement means what? We have to design the, which parameter of the pavement? We have to design length, breadth or thickness. What we are designing in pavement design, or what we are estimating? Anyone? No, width or thickness is Yes, thickness, right? So here thickness is design. See that width portion, it comes under a geometric design, not the pavement design. Okay, the width, what should be the width of the roadway, that comes under your geometric design. Okay, here we are dealing with the thickness of the pavement. That means we have to design the thickness. So in general knowledge, can you say how this thickness varies? In which places we have according to to give soil condition. high, large thickness, or in which, who wants to join? Yes, who was answering? Sukesh, tell, continue, please continue. मैम soil condition पर depend करता है. Yes, soil condition. Okay, that means the bearing capacity of the soil. Ultimately, pavement is soil. what? It is a structure which will transfer load, right? From layer to layer, ultimately to the earth surface. I mean to the ground. We are transferring load from top portion of the pavement, to the lowermost portion. Okay, suppose this is the wheel. Suppose this is the wheel. So we are transferring the load. Okay. So this is the load. We are transferring to the lower layer, or we can say we are distributing to the larger portion of the area. Okay. For that reason only we are providing different layers. Okay. So more the layers means more will be the what? More is the layer, more will be the, this is the cross-sectional view. Please remember, yes. So more the layer, so more is the thickness. Okay.
And this thickness only we have to design. That means the thickness of the total pavement. Pavement is what? All the layer combined together is known as the pavement. All the layers above subgrade. Okay, above subgrade, not subbase, not base, above subgrade. So Subgrade. all the layers above subgrade is the pavement. So here we have to design the pavement thickness, that means the total pavement thickness, and also the individual pavement, individual layer thickness also we have to design. Okay, so this is the funda of your pavement design. So in order to design, we cannot go directly to the procedure, design procedure, or we cannot go directly to this pavement design. All these are called the design of the flexible pavement, design of the rigid pavement. Okay, so before going to those, we need to have some idea. That means on which factors this thickness will be varied. Okay, that means in which portion or in which areas we have to provide more thickness, or in which areas we have to provide, we can provide less thickness. Okay, it depends upon the area, that is the nature of the soil, also the material property of the each layer. So you see, each layer is not the identical layer, they are different layers. Okay, and they have different names also. We will learn this also. So the material property, the materials that we are using to construct these layers, we have to understand its nature, we have to understand the material characteristics also, or material properties also. Okay, so that portion comes under your this one, see, pavement material characterizations. Okay, so here it comes. And apart from the material property, apart from the area where we are constructing those pavement, there will be another important factor. What purpose of pavement is what? To transfer the load from top layer to the bottom layer. Okay, so it mainly depends upon the load also. So this is the traffic load. Okay, so this is your traffic load. So it depends upon this load also. Okay, which is the capital P. Okay, so that comes under this chapter, which is the traffic consideration in pavement design. And this traffic load depends upon these factors. Vehicle type. Okay, see, there are different types of the vehicles in India. It's a heterogeneous country. Heterogeneous traffic condition prevails in India. Heterogeneous means all the vehicles are not of the same type, right? They are having different. Sorry. Who is trying to join the class? Soma, কোথায় সে? জয়েন হয়নি? ও সোম হালদার, আচ্ছা। কোন নামটা লিখিয়েছিল মানে। So the traffic considerations are what? Vehicle type. What are the types of the vehicles? Okay, one in the same pavement. The same pavement can be used by cycle, same pavement can be used by bicycle, same pavement can be used by motorbikes. Okay, same pavement can be used by heavy lorries, same pavement can be used by passenger car, by public transport like bus, trucks, everything, right? So the axle configurations are different of every types of the vehicle, and their classifications are also different. So obviously this P value will also be differing from type to type of the vehicles. Okay, and this type P load depends upon the axle configuration. Okay, contact shape. See, contact shape means the area of the contact from where the load is transferring from pavement to top pavement to the subsequent layers. Okay, below layers. So here it is that area of contact is here. Okay, so we have to consider whether it is circular, whether it is rectangular, whether it is elliptical. So what is the shape of that area? Okay, so that also we will learn. Contact stress distribution. So these are the stress distribution. Concept of standard axle load. See, axle configurations are what? It will vary from vehicle to vehicle. So what we have to do? We have to convert all the axle configuration into the standard axle load. Okay, for design purpose. That means we cannot see, different vehicles will have different axle configuration. So obviously their effect will be different. But what we have to do? We have to convert them into the one standard value, which is the standard axle load. That we will learn. What is that concept of standard axle? Okay. Vehicle damage factor. That means what?
motorbike will damage this vehicle at certain rate, okay, and the heavy loaded truck will also affect this pavement in the another rate. So that rate or the effect of this load on this pavement are different, okay. So because of that effect also there will be damages causing over this pavement, so damage will also be different, okay. So what are those damage factor that we have to develop, okay. And finally what we are using all these values or all this concept, finally what we will estimate, we will estimate the design traffic, which is denoted by capital N, okay. So it depends on these factors: vehicle type, axle configuration, contact shape, standard axle load, vehicle damage factor. So ultimately what we are calculating, we have to calculate what is the number of repetition of such kind of load. That means throughout its design period, our pavements has to sustain for about minimum 10 to 15 years. Okay, so throughout its design period, how many vehicles have come over that pavement in a repetitive manner, or we can say in a cumulative manner, that we have to estimate, okay. And depending upon this only we can design this thickness. That means how much load it can sustain throughout its design, or how much repetition of the load it can sustain throughout its design period. So that thickness we have to provide, okay. So depending upon its N value, that we will see when we will design, go for the design of, in this chapter, then we will see that we have to estimate first N, then we have to design the thickness using other parameters. So this is, and also see, this you have already have some idea about what are the different flexible pavement design methods and all, okay. This also what are the different design or analysis of rigid pavement, that we have, you have some idea from your previous semester, that is from your highway engineering subject. The new topic which you will learn in this chapter or in this subject is the pavement overlay design. Can anyone explain what do you mean by the overlay? Anyone? कोई बोल सकता है ये ओवरले का मतलब क्या है? किसी को आइडिया है? हम लोगों ने तो पेवमेंट डिजाइन कर दिया, रिजिड पेवमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट का थिकनेस कितना देना है, हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब ये बोलो ये जितना भी थिकनेस हम लोगों ने डिजाइन किया है, थ्रू आउट द पीरियड उतना ही थिकनेस एकदम इंटैक्ट रहेगा, मतलब विदाउट एनी फेलियर? वहां पे क्या होता है, कभी कभी डिफरेंट फेलियर्स अकर होता है, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेलियर्स दैट आल्सो वी विल लर्न, ओके। कि क्या है तुम्हारा पॉट होल्स, जो कॉमन जो फेलियर तुम लोगों ने देखा होगा पेवमेंट में, पॉट होल्स, पानी जमा हो जाता है, राइट। कभी कोई गड्ढा हो जाता है, कुछ डिप्रेशन हो जाता है, वहां पे पानी जमा हो जाता है, राइट। सो उस दैट इज वन काइंड ऑफ योर डिस्ट्रेस और फेलियर इन दी पेवमेंट, ओके। सो थ्रू आउट द डिजाइन पीरियड ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सरफेस क्या है थ्रू आउट इट्स डिजाइन पीरियड, मतलब 20 ईयर्स अगर फ्लेक्सिबल पेवमेंट है तो 10 to 15 ईयर्स है, ओके। अगर रिजिड पेवमेंट है तो 20 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो थ्रू आउट दैट 20 ईयर्स और 10 ईयर्स तुम्हारा पेवमेंट इंटैक्ट जैसा इनिशियल स्टेज में था वैसा ही नहीं रह सकता है। देयर विल बी सम फेलियर और देयर विल बी सम स्ट्रेसेस डेवलप इन द पेवमेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू दैट, मोस्टली कौन सा पेवमेंट तुमको लगता है ज्यादा खराब हो सकता है, टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट? Anyone? Which pavement? Topmost, right? क्योंकि it is in direct contact with the traffic, ठीक है। तो वहीं पे तुमको पॉट होल्स ये सब दिखता है ना। So what we need to do? We have to again repair those, जितना भी थिकनेस में वो फेलियर ऑकर हुआ उसको रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। So repair का मतलब क्या है? What we will do? We will scrap out, मतलब कितना डेप्थ तक तुम्हारा पेवमेंट वो डिस्ट्रेस हुआ था उसको एकदम निकालेंगे, स्क्रैप करके निकाल देंगे, ओके। और वहां पे तो क्या हो जाएगा, खाली कर देंगे, फिर उसका लेवल, सपोज तुम्हारा पेवमेंट इनिशियली यहाँ पे था, इतना था पेवमेंट का थिकनेस, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा डिस्ट्रेस ऑकर हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रेस ऑकर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतना लेयर स्क्रैप आउट कर देंगे, मतलब इतना लेयर वी विल रिमूव,
ओके, जो भी डिस्ट्रेस पोर्शन जो भी था उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। आफ्टर रिमूवल तुम्हारा पेवमेंट कहाँ पे आ जाएगा, थिकनेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को तो डिजाइन किए थे, व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिजाइन दिस थिकनेस, इतना होना चाहिए था, कैपिटल एच इतना होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम या आफ्टर फ्यू इयर्स ये इसको डिस्ट्रेस हो गया, तो हमको ये लेयर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, तब एच तुम्हारा ये वाला थिकनेस हो जा रहा है। तो विल इट बी सेफ, हम इसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सेफ रहेगा ये पेवमेंट, इतना ही थिकनेस देके हम छोड़ देंगे तो विल इट बी सेफ, नहीं, क्योंकि हम लोग का डिजाइन थिकनेस ही है इतना, राइट, इतना था। नाउ एच इज स्मॉलर देन दिस डिजाइन थिकनेस, वहां पे तो सेम अमाउंट ऑफ गाड़ी जाएगा, राइट। यहाँ पे सपोज 10 टू व्हीकल जा रहा था, इसमें से भी 10 टू ही जाएगा, कमेगा तो नहीं, उल्टा और बढ़ेगा, विथ ईयर इट विल इंक्रीज। तो इतना थिकनेस इज नॉट, इट इज नॉट क्या बोलते हैं, इनफ टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस और टू प्रोवाइड जो भी यहाँ पे वो आएगा डिस्ट्रेस डेवलप होगा, उसको रेजिस्ट करने में इतना थिकनेस ये नेसेसरी इनफ नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, सो वी हैव टू अगेन प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ थिकनेस, या उससे भी कम, मतलब अगर ये सेम मटेरियल यूज करें तो सेम अमाउंट ऑफ थिकनेस होगा, राइट। अगर हम अच्छा मटेरियल यूज करेंगे तो ऑब्वियसली थिकनेस कम हो जाएगा। गुड इज द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल दैट वी आर यूजिंग, लेसर विल बी द थिकनेस, ठीक है। तो ये जो जितना हम लोगों ने थिकनेस डिजाइन करके फिर से उसके ऊपर ओवरले कर दिया, मतलब ओवर दिस पेवमेंट हमने फिर से और एक पेवमेंट लेयर ले कर दिया, ओके। सपोज दिस इज योर एच नॉट या एच ओ, so this thickness is called the overlay thickness, okay, and we have to design this thickness कि यहाँ पे कितना थिकनेस देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सपोज तुम लोगों ने पहले H1, अगर यहाँ से H1 थिकनेस स्क्रैप आउट कर दिया, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे हमको H1 ही थिकनेस देना पड़ेगा, ओके। इफ वी प्रोवाइड सम गुड मटेरियल्स, मतलब यहाँ से सपोज पत्थर वत्थर लेकर किया, तब यहाँ पे हम लोग सीमेंट कॉन्क्रीट करेंगे ये वाला लेयर, सो ऑब्वियसली आवर थिकनेस विल गेट रिड्यूस, ओके। सो ये एच नॉट जो नया ओवरले कर रहे हैं थिकनेस, दैट इज कॉल्ड द पेवमेंट ओवरले, और उसका डिजाइन आता है इस वाले मॉड्यूल में, ओके। सो दिस इज एज पर IRC 81, तुम्हारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट वाज एज पर IRC 37, rigid pavement was as per IRC 58, and your overlay design is as per IRC 81. This code I will provide to you, okay। तो ये सब हमको पढ़ना है इन दिस, ये वाला थोड़ा नया चैप्टर है फॉर यू पीपल, ओके। अदर चैप्टर्स आर मोस्टली थोड़ा बहुत आइडिया है तुम लोग को कि क्या होता है, कैसा होता है डिजाइन, ये सब, but this is totally new chapter, okay, new topic for you people. Hope I think clear about this syllabus of the pavement design. Any query regarding the module, any type, any kind of module, any query कुछ है तो बोलो कि इस टॉपिक में और क्या क्या होगा, या कुछ समझ में नहीं आया कि कौन से टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हो, ओके। अगर फॉर रेफरेंस बुक यू मे फॉलो योर खन्ना जस्तो, ओके, वहाँ पे भी अभी थोड़ा और अच्छे से दिया हुआ है पहले एडिशन से अभी, ठीक है। नहीं तो ये बुक्स मिलेगा तो बहुत अच्छा है, योडर वाला, लेकिन बहुत कॉस्टली भी है ये वाला, ठीक है, पेवमेंट डिजाइन का योडर। अदरवाइज खन्ना जस्टो इज इनफ फॉर यू पीपल, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए ये ओके है। इसमें सिर्फ ओवरले डिजाइन नहीं है, डोंट वरी, आई विल गिव यू, आई विल प्रोवाइड नोट्स, कोड जो लगेगा वो भी सब कुछ हम दे देंगे, ओवरले डिजाइन, ठीक है। बाकी का यू विल गेट फ्रॉम खन्ना जस्टो, क्लियर? What about the others? Only one people, only one student is responding. बोलो, अरे এত কম অ্যাটেন্ডেন্স কেন? বুঝতে পারছি না, প্রথম দিন বলে। See, so let us start our new lecture, okay? So नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। This is your first lecture for today's for pavement design, okay? So introduction to the
So, introduction to the pavement layers. Okay. शिफ्ट हो बेटा एक्चुअली फ्राइडे टर्न नहीं क्लास से कुछ नहीं. So these are the sorry. Okay, so let us continue. So introduction to the pavement layer. As I already said that our pavement is what? It is also a structure. Like your building structure, this is also a structure. So structure, we know what we do. We have to do analysis. Okay, we have to do design. Okay, so design means what? Designing some parameters. Okay, so designing your design means what? Your design means we have to design this thickness. See, surface course thickness, base course thickness, subbase, and the below will be a subgrade. So total pavement thickness is what? Subbase, base plus surface course thickness. If we sum up, then we will get the total pavement thickness. Okay, so this we have to design. Now, before going to the design procedure, we have to understand what are these layers. Okay, what are the composition of this layer? What are the materials that are used in these layers? Okay, and based on the layer also we can differentiate. There are two types of the pavement. Broad classification is what? Two types, flexible and rigid, that we will see. Okay, so these are the topics that we will learn today. What? Definition and function of the pavement, facilities where pavements are provided, pavement structures and its component. Components means layers, and what are the materials used for those pavement layers, constructing those pavement layers. And based on those layers only we can classify the pavement, that is flexible or rigid pavement. That is the pavement type. What are the pavement types? Okay, and the components of the pavement layer we will see in the diagram. Okay, we will see, I will show you one diagram. Okay. See, pavement is what? As I said, it is a structure consisting of superimposed layer. That means what? Each layer is laid over the one above the other. One above the other, superimposed. Okay, of the processed material. So built over a prepared subgrade or foundation. Like a structure, there will be one foundation, building structure. Here also one foundation is there, which is your soil subgrade. Okay, this is actually nothing but the natural soil compacted at certain density. That is your optimum density. Okay, we are compacting this layer we are compacting this layer to its certain maximum density, not the yes, we can say it is a maximum density, or we can say it is the optimum density. Okay, and the purpose is what? It carries the vehicular loading and transfers the loading from top layer to the subsequent below layers. Okay, see, the primary function is what? To distribute the applied load, to distribute the applied vehicle loads to the subgrade. So these are the vehicles. Okay, like this is a wheel load. See here, it is distributing. See, in this layer, load is distributed from this contact area to this much area, wider area. Okay, and in the second layer, this area has been increased, and in the third layer again it is increased. So ultimately what happens? Load is constant, P is constant, but the area is what? Your load is constant. Okay, but the area or the load distribution area is what? It is keep on increasing. It is increasing, right? So ultimately what happens? Your stress or the pressure is what? It is reducing or increasing. Load is constant, area is increasing, so pressure will what happen? It will increase or decrease? Sigma or pressure is equals to what? Load per unit area, right? Okay, so sigma is what happened? Your area is reducing, increasing, so ultimately this value is decreasing, right? So your stress on the layers, beneath layer, it is keep on reducing. So that is the main purpose only of any structure. What we have to do? We have to distribute, or we have to reduce the load only. Okay, so when it reaches in the subgrade, see, our stress is very less. So
So the stress developed on this natural ground or on the earth is what? It is very less. Okay, for that purpose only we are constructing these layers. If we directly see, suppose there is no pavement, your wheel load is directly applied on this subgrade, then what happens? Here the stress will be very high, right? The stress will be very high, so ultimately failure may occur. Okay, so failure will occur. That means it will deflection will occur. So we are reducing this stress, so deflection will be very less here. Okay, so this is the main funda of the pavement. Why we are constructing the pavement into the layers? This is the main funda. Okay, and all this pavement are not made up of same quality or made up of same material. Their quality, as we go up, the quality of the material of each layer will what happen? It will increase or it will reduce. What we have to do? We should increase the quality as we go up, or we should reduce the quality of the pavement material? Increase, right? That means yes. So as we go up, your E value will be more. Okay, it will increase. Or we can say other properties like that we have learned in our transportation engineering labs, that are your impact value, abrasion value, right? So all the Los Angeles abrasion value, safe aggregate test, all this test, what we are doing, we are checking the quality of the materials. Okay, so best quality material should be provided on the topmost layer, best quality. Okay, so that's why we are conducting the experiment. Why we are conducting experiment? To check the quality of the pavement, and depending upon the quality we will say, okay, we will provide this kind of material in the top layer, or we should provide it on the bottom layer. Okay, so depending upon these experimental values only we are deciding that which values or which value or which quality of aggregate must be used in which layers. Okay. अच्छा, फैसिलिटीज वे पेवमेंट्स आर प्रोवाइडेड. एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे तुम लोग को दिखाई देता है पेवमेंट्स? एनीवन? वेयर यू कैन सी पेवमेंट्स? सिर्फ हाईवे पे दिखता है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे वी कैन कंस्ट्रक्ट द पेवमेंट? ओनली इन हाईवेज. हाईवे तो है, उसमें तो कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ता है. Now apart from highways, what are the other facilities? एयरपोर्ट, वहां पे भी तो होता है पेवमेंट, राइट? जहां से रनवे, मेनली रनवे, टैक्सीवे, वहां पे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द पेवमेंट. वहां पे कौन सा ट्रैफिक लोड आ रहा है? एयर का ट्रैफिक. ये जो एयरक्राफ्ट का जो लोड आ रहा है वो लोड आ रहा है यहाँ पे, राइट? अगर यहाँ पे हम लोग रोडवे या पेवमेंट कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, देन व्हाट हैपेंस? अगर ये जमीन पर ही डायरेक्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब जो नेचुरल सरफेस अर्थ सरफेस है उसमें ही आके वो मतलब रुक रहा है. एयरक्राफ्ट वहीं से टेक ऑफ कर रहा है, वहीं पर लैंडिंग कर रहा है. देयर इज नो पेवमेंट ऑन दैट एयरपोर्ट. देन क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होता है तब? ये जिस फोर्स से आएगा, जिस लोड से आएगा, इट कैन नॉट बी टैकल बाय द अर्थ सरफेस, राइट? क्योंकि वो बहुत फोर्स से आएगा वहां पे. तो वहां पे तो अगर जमीन रहेगा, ग्राउंड सरफेस रहेगा, जो मिट्टी है सब धूल वूल हो जाएगा, उससे यहाँ पे घुस जाएगा. ठीक है, तो वहां से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है. प्लस वो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, वहां पे फेलियर्स जल्दी आ जाएगा. तो इट कैनॉट बियर, राइट, द लोड. तो इसीलिए हमको यहाँ पे पेवमेंट थिकनेस देना पड़ता है, जिससे कि जो इसका लोड है वो वाइडर एरिया में जाके स्प्रेड होके कम लोड दे जाए, मतलब ग्राउंड सरफेस में कम लोड अप्लाई हो, जिससे फेलियर कम हो. ओके, सो एयरपोर्ट पेवमेंट हुआ. तुम्हारा हॉल रोड, बस टर्मिनल याद, वहां पे भी पेवमेंट हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे ये देखो, पेवमेंट का मतलब नॉट नेसेसरी कि एकदम बिटुमिन पेवमेंट, एकदम कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, ऐसा नहीं होता है. कहीं पर यू कैन सी देयर आर ओनली WBM रोड, मतलब कि वाटर बॉर्न मैकाडम रोड. ठीक है, वहां पे कोई कंक्रीटिंग नहीं है, वहां पे कोई तुम्हारा बिटुमिन भी नहीं है, लेकिन दैट इज अ रोड ओनली, राइट? दैट इज अ पेवमेंट ओनली, बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग इन द लेयर्स. और उसका लेयर्स में कंस्ट्रक्ट करना है मतलब है वी आर ट्रांसफरिंग द ट्रैफिक लोड टू द वाइडर पोर्शन ऑफ द ग्राउंड, राइट?
तो ये वाला भी देखो, तो दिस इज कॉल्ड हॉल रोड। हाईवे पेवमेंट में तो है ही, so these are the different types of the pavement, okay, and depending upon the types of the, or we can say प्रायोरिटी के अनुसार हम लोग का पेवमेंट का थिकनेस भी वेरी करेगा, इसका क्वालिटी कैसा होगा वो भी वेरी करेगा। जैसे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ पे हेवी लोडेड ट्रैफिक और ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ट्रैवल करता है। मतलब वॉल्यूम मतलब क्या है, मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स विल यूज दोस ट्रैफिक, सॉरी यूज दोस हाईवेज, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ लोड, सो इन दैट केस वी हैव टू डिजाइन इन दैट वे ओनली कि इसका थिकनेस ज्यादा होना चाहिए, या वी हैव टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मटेरियल्स, ओके। सो जो लो वॉल्यूम रोड मतलब वहां से एक दो गाड़ी ऐसे जाता है, मतलब सपोज हाईवे से अगर 2000 व्हीकल्स पर आवर में जा रहा है, तो लो वॉल्यूम ट्रैफिक पे सपोज 1000 व्हीकल्स पर आवर्स में जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका डिजाइन थोड़ा अलग हो जाएगा, ओके। तो ऐसा है। सो दीज आर द facilities where we need to construct the pavement. We are not constructing pavement only in the highways. There are other facilities also. So these are those facilities, okay? Now pavement structure और details में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे नीचे क्या होगा बोलो, सबसे नीचे कौन सा लेयर होना चाहिए? सबसे नीचे होगा तुम्हारा क्या, सबग्रेड। मैम नेचुरल सॉइल लेयर तो फिर यस, नेचुरल सॉइल, बट इट इज कॉम्पैक्टेड। प्लीज रिमेम्बर, नेचुरल सॉइल मतलब कि जमीन नहीं है तो तुम्हारा सबग्रेड नहीं है, इट इज अ लेयर ऑफ नेचुरल सॉइल, बट इट हैज टू बी कॉम्पैक्टेड अप टू इट्स ऑप्टिमम डेंसिटी, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद है तुम्हारा सब बेस, सो दिस इज द सब बेस, ओके। उसके ऊपर सब बेस होता है, फिर उसके ऊपर हो जाता है तुम्हारा बेस कोर्स, ओके, बेस कोर्स है। फिर है तुम्हारा बाइंडर कोर्स। देखो, टॉप कोर्स को दो भाग में हम लोग कर सकते हैं, टॉप कोर्स को, जो टॉप लेयर को हम दो भाग में कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर बाइंडर कोर्स, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो टॉप मोस्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस और वियरिंग कोर्स, ओके। ये दोनों मिलाकर ये जो है, इट मे बी योर सीमेंट कॉन्क्रीट, इट मे बी योर बिटुमिनस कॉन्क्रीट, ठीक है, इसको बोलते हैं। So top layer comprises of these two layers, binder course और surface या wearing course जिसको बोलते हैं। wearing क्यों बोलते हैं? Because यहाँ पे तुम्हारा सबसे ज्यादा चांसेस है wear and tear due to friction, ठीक है। ट्रैफिक यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, इस लेयर से तो नहीं आ रहा है, इसके कांटेक्ट में है, सो वियर एंड टियर होने का चांसेस सबसे ज्यादा इस लेयर में होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, इट इज वियरिंग कोर्स, ओके। सो और द बॉटम मोस्ट जो है दैट इज कॉल्ड द सबग्रेड टू सपोर्ट द ट्रैफिक लोड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द रोड बेड सॉइल, मतलब नीचे जो सॉइल है उसको उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये वाला दिया जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अगर कोई पूछेगा कितना लेयर्स है, लेयर्स का नाम क्या है, सो यू कैन आंसर, आई थिंक, ओके। सो लेट अस डिस्क्राइब ईच लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, टॉप सरफेस लिखा बोल के, नो, यहाँ पे पूरा पढ़ो। इट इज व्हाट इट हैज रिटन, टॉप सरफेस ऑफ द रोड बेड सॉइल, मतलब बेड सॉइल का जो टॉप सरफेस है उसको बोलते हैं सबग्रेड, नॉट द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द पेवमेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट टॉप सरफेस ऑफ द रोड बेड सॉइल, बेड सॉइल का टॉप सरफेस जो है दैट इज कॉल्ड द सबग्रेड, अपॉन व्हिच पेवमेंट स्ट्रक्चर्स एंड द शोल्डर्स आर कंस्ट्रक्टेड, मतलब उसके ऊपर अब पेवमेंट लेयर्स हम लोग बिठाएंगे, ओके। तो अबव व्हिच पेवमेंट स्ट्रक्चर्स एंड शोल्डर्स आर कंस्ट्रक्टेड। फंक्शन क्या है, रिसीव स्ट्रेसेस फ्रॉम द लेयर अबव, मतलब ऊपर से जितना लेयर से उससे जो स्ट्रेस आ रहा है वो उसको रिसीव करेगा एंड ट्रांसफर करेगा नीचे और नीचे सॉइल में, ओके। compacted to the desirable density near its optimum moisture content. Optimum moisture content मतलब क्या है? It is a maximum density. Sorry, optimum moisture content क्या है? That moisture content where we will gain the maximum density of the soil. जितना densely compacted होगा मतलब that will be क्या बोलते हैं, हार्ड होगा, वो वाला लेयर हार्ड होगा एंड इट विल बी मोर स्ट्रेंथ, इसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, राइट। जितना लूज हो जाएगा क्या है, उसका स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, okay. So the optimum moisture content is what? The moisture content at which we will reach the maximum density, maximum dry density, okay. So उतना वाटर छिड़क के हम लोग लैब में करेंगे, वो वाला ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो भी निकाल के ग्राफ वाफ से प्लॉट करके, ठीक है। तो उतना पानी छिड़क के इसके ऊपर रोल करके व्हाट वी विल डू, वी विल इसको डेंस कर देंगे, कंपैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेन दैट व्हाट, आवर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ओके। अब है सब बेस।
सब बेस को हम लोग ड्रेनेज कोर्स भी बोल सकते हैं। ड्रेनेज क्यों? देखो जो पेवमेंट है ना, अच्छा इसमें दिखाते तुमको, जो पेवमेंट का टॉप सरफेस जनरली वी प्रोवाइड व्हाट? कैम्बर। कैम्बर पता है एनीवन? इधर नहीं दिया है ना। कैम्बर मीन्स इट इज अ क्रॉस स्लोप, मतलब ये जो क्रॉस स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, साइड स्लोप जिसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्लोप, ठीक है, स्लोप ही होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्रॉस सेक्शन शुड बी, it should not be flat, pavement should not be flat, it should have some transverse sloping. Okay, why? क्यों? What is the purpose of camber? Anyone? मतलब अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे पेवमेंट, ठीक है, सपोज ये सब बेस हुआ, ठीक है, फिर तुम्हारा ये है बेस, सब बेस, फिर है बेस, ठीक है, फिर है तुम्हारा टॉप सरफेस। तो ये जो स्लोप दिखा, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ओके, हम लोग रास्ते को एकदम सीधे खड़ी यहाँ से होके यहाँ से काट रहे हैं, रास्ते को काट के देख रहे हैं फ्रॉम दिस साइड। Okay, so this is the slope. So why we are providing this cross slope or camber? So that अगर ड्रेनेज होगा, बारिश का पानी आएगा, so it will flow, it will not मतलब यहाँ पे वो स्टे नहीं करेगा, ठीक है, वाटर लॉग नहीं होगा यहाँ पे, सो इट विल फ्लो एंड गो टू द ड्रेनेज। कैनल्स जो होता है ड्रेनेज का साइड में, देखना है तुम लोग, वहाँ पे चला जाता है। ओके, सो बाई चांस अगर यहाँ पे कोई क्रैक्स है, टॉप सरफेस में अगर कोई क्रैक्स है, ठीक है, उस क्रैक से ये पेनिट्रेट होके अगर गया, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर पानी नीचे पेनिट्रेट होके अगर गया, नीचे क्या है तुम्हारा? सॉइल है, कॉम्पैक्टेड सॉइल है, तो सबग्रेड मतलब क्या है? कॉम्पैक्टेड सॉइल, मतलब हम लोग एक मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट डाल के उसको कॉम्पैक्ट किए हैं। अब ये वाला पानी नीचे होते होते इसमें जाके मिक्स हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्लोली द सॉइल विल बिकम लूज, राइट? सो लूज होने की वजह से यहाँ पे अगर तुम्हारा लोड आ जाएगा, सो लोड की वजह से क्या हो जाएगा? पूरा ये धंस जाएगा। ओके, सो इट विल डिफ्लेक्ट, डिफॉर्म, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है वो भी धंस जाएगा। धंस जाएगा मतलब इट विल फेल, स्ट्रक्चर विल फेल, अल्टीमेटली फेल हो जाएगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, देखो ऐसा नहीं होता कि ये पूरा एकदम एयर टाइट, सॉरी वाटर टाइट हो, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या होता है, होना चाहिए क्या? पूरा वाटर रिपेलेंट होना चाहिए, मतलब कि ये पूरा इट शुड बी सील्ड, वाटर प्रूफ होना चाहिए टॉप सरफेस। लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ फेलियर स्ट्रेसेस क्या हो जाता है? क्रैक्स डेवलप हो जाता है। क्रैक्स डेवलप होकर बारिश अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? ये नीचे सीपेज हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। ओके, सो इन दैट केस ये पानी अगर बाई चांस नीचे आएगा तो यहाँ पे एक लेयर है विच इज दी सब बेस और बेस, ठीक है, मतलब इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रैनुलर, मतलब ग्रेन्स, जो जो एग्रीगेट्स है, मोटा मोटा एग्रीगेट्स, उससे हम लोगों का ये लेयर कंपैक्ट करके, जैसे यहाँ पे सैंड या नेचुरल सॉइल देकर हम लोगों ने कंपैक्ट करके बनाया। बेस और सब बेस क्या होता है? बेसिकली बड़ा बड़ा पत्थर्स को कंपैक्ट करके विद द फाइन एग्रीगेट्स, ओके, करके हम लोग ये लेयर्स जनरेट करते हैं। तो जनरली क्या हो जाता है यहाँ पे देखो, बिकॉज ऑफ द स्लोप, अगेन क्या होता है, अगर बारिश का पानी यहाँ पे रीच किया तो ये इधर इधर से पेनिट्रेट होगा। यहाँ पे अब स्लोप है, यहाँ पे भी स्लोप है, सो इट विल पेनिट्रेट फ्रॉम दिस पोर्स, जाके अब फिर से ये ड्रेन में चला जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा पेनिट्रेट करके बिकॉज ऑफ द स्लोप इस तरफ पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस लेयर्स इज नोन एज ड्रेनेज कोर्स। Why? It is supporting the drainage of the water which has penetrated from the top layer. जनरली नहीं होना चाहिए, अगर हो भी गया तो यहाँ पे आके ये स्लोप की वजह से एंड बिकॉज ऑफ द पोर्स इनसाइड दिस क्या बोलते हैं लेयर्स, इट इज एक्टिंग लाइक अ ड्रेनेज फोर्स, ठीक है। तो वो और नीचे नहीं जाएगा, अब ये नीचे नहीं जाएगा, ये पानी नीचे नहीं जाएगा, वो यहीं से जाके ड्रेन में मिल जाएगा, साइड में जो ड्रेन होगा वहीं से जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, तब ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबबेस और ड्रेनेज कोर्स इसी को ही बोलते हैं। ओके, सो द लेयर, आई थिंक क्लियर? एनी डाउट? বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, ঘুম পাচ্ছে না তো আবার?
ना ना मैम। আচ্ছা বাকিদের কি খবর? হোয়াট অ্যাবাউট দি আদার্স? ওয়াই ইউ পিপল আর নট রেসপন্ডিং? একটু হ্যাঁ না বলো, তাতে আমিও বুঝতে পারবো গো তোমরা হ্যাঁ আছো। ম্যাম, হ্যাঁ। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো কোয়েশ্চেন করো কিছু ডাউট থাকলে, নাকি সব জেনে বসে আছো? সব জেনে সময় বসে আছি। ঘুমিয়েছিল ম্যাম। সব জেনে বসে আছো, বাহ। এবার আমি জিজ্ঞেস Yes. করবো, अच्छा बोलो देन व्हाट इज द फंक्शन, बोलो। इतना दूर तक तो हम बोल 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 दिए, एक्सप्लेन कर दिए। नाउ टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सब बेस। क्या लगता है कि इसका फंक्शन क्या है सब बेस का? देखो ये सब बेस है, नीचे क्या है, सबग्रेड है, ठीक है, उसके ऊपर अपन लोगों ने सब बेस डाल दिया और ये वाला तुम्हारा बेस। ओके, देखो ये थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकल्स लग रहा है ना, ग्रैनुलर लग रहा है ना, ये और ग्रैनुलर लग रहा है, राइट? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सब बेस? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बेस कोर्स, मतलब इसके ऊपर क्या है और एक लेयर है, उसको सपोर्ट देने के लिए ये काम में आता है, ठीक है, बेस कोर्स। टू इम्प्रूव ड्रेनेज, हम जो बोले ना इम्प्रूव ड्रेनेज, अगर बाई चांस फ्रॉम द टॉप सरफेस इफ वाटर पेनिट्रेट्स बीनीथ लेयर देन it will act as a drainage course, so it will help to improve the drainage, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में इसमें हेल्प करेगा। ड्रेनेज मतलब पेवमेंट का ड्रेनेज, पेवमेंट में जो बारिश का पानी पेनिट्रेट हो रहा है उसका ड्रेनेज, ओके। दूसरा क्या है, रिड्यूसेस द इंट्रूशन ऑफ द फाइन्स फ्रॉम द सबग्रेड इन द पेवमेंट स्ट्रक्चर। देखो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट इसके नीचे क्या है, ये सब बेस के नीचे क्या है बोलो तो, बीनीथ दिस लेयर कौन सा लेयर है, सब बेस के नीचे कौन सा लेयर है बोलो, ये सब बेस है ना, ठीक है, इसके नीचे कौन सा लेयर देखो, सबग्रेड। एंड सबग्रेड वी नो इट इज कॉम्पैक्टेड सॉइल, राइट? मैम सॉइल सीखे सर मतलब, फोन कर सकते। हाँ ठीक है, कॉम्पैक्टेड सॉइल, सॉइल मतलब क्या है यहाँ पे, फाइन एग्रीगेट्स है, या वी कैन से दिस आर द फाइन सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। सो क्या हो जाता है कभी कभी तुम्हारा ये जो सॉइल पार्टिकल्स है इट कैन मतलब ऊपर सिप होके चला जा सकता है, इंट्रूड कर सकता है, राइट? यहाँ का सॉइल पार्टिकल्स ऊपर की तरफ, बिकॉज ये तो थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, तो बड़ा बड़ा एग्रीगेट्स है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी और बड़ा बड़ा एग्रीगेट्स है। सो हो सकता है क्या कि यहाँ का जो भी फाइन बिकॉज ऑफ लोडिंग बोलो, ठीक है, ये बार बार लोड हो रहा है, फिर लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मोबाइल हो जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो फाइन एग्रीगेट्स है इट विल इंक्लूड फ्रॉम लोअर लेयर टू दी अपर लेयर, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये लेयर इट विल बी लूज, और वी कैन से इसका जो स्टिफनेस है और वी कैन से इसका जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाएगा। अल्टीमेटली इसका शियर स्ट्रेंथ कम होना मतलब पूरा पेवमेंट का ही फिर से स्ट्रक्चर का ही क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी घट जाता है, ओके, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी घट जाता है। सो टू प्रिवेंट दिस इंट्रूशन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सबग्रेड टू द अबव लेयर, हम बीच में एक लेयर दे रहे हैं विच इज नाइदर, मतलब यहाँ पे ज्यादा बड़ा बड़ा पार्टिकल्स भी नहीं है, इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में। सो अगर ऐसा पार्टिकल्स अगर रहेगा तो ये इजिली इंट्रूड नहीं कर पाएगा टू द अबव लेयर्स, ओके। सो फॉर दिस रीजन दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सब बेस, ओके। सो दिस आर द फंक्शन टू प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब टॉप लेयर को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा है ड्रेनेज फैसिलिटी, मतलब इंप्रूव द ड्रेनेज, ठीक है। दूसरा है रिड्यूसेस द इंट्रूशन ऑफ द फाइन फ्रॉम द सबग्रेड इन द पेवमेंट स्ट्रक्चर, ओके। अब ये मटेरियल्स किस मटेरियल से बनता है, ठीक है। सो कभी कभी हम लोग सब बेस कोर्स को वी कैन नेम इट एज ग्रैनुलर सब बेस, कभी कभी सब बेस को हम लोग जीएसबी भी बोलते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड द ग्रैनुलर सब बेस। तो इस नाम से पता चल रहा है कि क्या मटेरियल्स वी कैन यूज, ओके। सो मटेरियल्स दैट वी आर यूजिंग आर दीज मटेरियल्स, ओके। सो दीज वाला क्या है, ये ग्रेवल है या क्रस्ट ग्रेवल या क्रस्ट स्टोन, ये जो है क्रस्ट स्टोन, ओके, और नेचुरल सैंड। सो दीज आर द कंपोनेंट्स और द मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सब बेस, ओके। और ये सब स्पेसिफिकेशन है कि कौन सा साइज का एग्रीगेट हम लोग इस वाले में यूज कर सकते हैं,
ठीक है। एंड व्हाट इज ये है टेबल 400 स्पेसिफिकेशन एज पर मोड का जो भी साइज है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कि इतना साइज का एग्रीगेट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और थिकनेस, ईच लेयर का हमको क्या करना है, थिकनेस देना है, कितना लेयर का थिकनेस हमको बिठाना है। सो फॉर ग्रैनुलर सब बेस बोला है कि यहाँ पे इट शुड नॉट एक्सीड 150 मिलीमीटर। ओके, अब आते हैं सब बेस के ऊपर कौन सा लेयर बिठेगा। पहले आ गया सब ग्रेड, फिर आ गया सब बेस बनाया, ठीक है, कंपैक्ट किया, फिर उसके ऊपर कौन सा लेयर आएगा, सब ग्रेड, सब बेस, देन बेस कोर्स। ओके, सो ये वाला जो है, तो द लेयर ऑफ द स्पेसिफाइड और सिलेक्टेड मटेरियल, याद रखना दोनों का मटेरियल अलग है लेकिन, ओके, और थिकनेस भी अलग हो सकता है। So the layer of specified or selected material of design thickness placed on the sub base course is known as the base course. ठीक है। So mechanical interlock filling voids with screening materials and then compacted. मतलब कि क्या करना है हमको, पहले एग्रीगेट्स बिठा दिया, ठीक है, फिर फाइन एग्रीगेट्स दे देंगे फिलिंग। एग्रीगेट्स को अगर हम सिर्फ कंपैक्ट करके लेयर बनाएंगे देन क्या हो जाएगा, वहाँ पे वॉइड्स बहुत सारा हो जाएगा। सो वॉइड ज्यादा हो जाएगा मतलब क्या है, वहाँ पे तुम्हारा उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है, वॉइड्स कम है, ज्यादा होने से स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, वो वॉइड्स को फिल कर देना है। तो फिल करने के लिए क्या करेंगे, देखो फाइन एग्रीगेट्स वी आर यूजिंग, ठीक है। अब फाइन एग्रीगेट्स यूज करके पहले हम लोग एग्रीगेट बिठा दिया, फिर वी आर फिलिंग दिस वॉइड्स एंड फिर स्क्रीन मटेरियल डाल देंगे, देन वी आर कंपैक्टिंग। ओके, so this is the construction method, ठीक है। तो इन दिस वे बेस कोर्स इज कंस्ट्रक्टेड। अब फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पेवमेंट लेयर्स का काम है, ठीक है। तो बेस कोर्स का भी एक काम है क्या, कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रॉम टॉप लेयर टू द बॉटम लेयर्स। दूसरा क्या है, कंट्रीब्यूट्स टू द सब सरफेस ड्रेनेज। हम बोले थे ना सब बेस दे आर एक्टिंग लाइक अ ड्रेनेज कोर्स। सो ये भी देखो यहाँ पे अच्छे से एग्जांपल दिया गया है, मतलब पिक्चर दिया गया है। Okay, so in the picture I think you can see ये दिखाई दे रहा है, देखो प्रोवाइड्स एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट टू द सरफेस। देखो बारिश का पानी आ रहा है, यहाँ पे एक कैम्बर है, देखो यहाँ पे स्लाइटली देयर इज सम लिटिल बिट ऑफ योर क्रॉस स्लोप, क्रॉस फॉल यहाँ पे दिया है, क्रॉस स्लोप, ठीक है। अगर बाई चांस इफ दिस पेनिट्रेट्स इनसाइड टॉप सरफेस, ठीक है, टॉप सरफेस से नीचे पेनिट्रेट हो जाएगा, तो बेस कोर्स में भी यहाँ पे स्लोप दिया गया है, जिससे यहाँ पे ग्रैनुलर है, मतलब पोर्स रहेगा। सो यहाँ से तुम्हारा ड्रेनेज में जाके चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे के लेयर में पानी रीच ही नहीं कर पाएगा। रीच का लेयर मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा खतरा है, सबसे ज्यादा मतलब किसको प्रोटेक्ट करना है, सबग्रेड को, ठीक है। सबग्रेड मतलब जो कंपैक्टेड सैंड या क्या बोलते हैं, कंपैक्टेड नेचुरल सॉइल जो है, ठीक है। बारिश का पानी अगर बाई चांस वहां पे रीच हो गया देन इट विल लूज, तो स्ट्रेंथ ये लूज करेगा अपना। ओके, सो मटेरियल यूज्ड अगेन क्रस्ट स्टोन, क्रस्ट स्लैग, अनट्रीटेड एंड स्टेबलाइज्ड मटेरियल। सो दीज आर द मटेरियल दैट वी आर यूजिंग। दोनों का एक ही लग रहा है लेकिन इसका एग्रीगेट का साइज अलग होगा इन केस ऑफ सब बेस एंड इन केस ऑफ बेस। ओके, अब देखो बेस कोर्स बहुत टाइप का होता है। देयर विल बी मतलब कैसे हम कंपैक्ट कर रहे हैं, हाउ वी आर कंपैक्टिंग और कंस्ट्रक्टिंग द बेस कोर्स डिपेंडिंग अपॉन इट। देयर आर सेवरल वी कैन से मेनली टू टाइप्स ऑफ द बेस कोर्स, ठीक है। एक है क्या, वाटर बाउंड मैकाडम, WBM, ये तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। ओके, अनदर इज व्हाट, वेट मिक्स मैकाडम, ठीक है। एक है WBM वाटर बाउंड मैकाडम और दूसरा है वेट मिक्स मैकाडम। नाउ व्हाट इज वाटर बाउंड मैकाडम? ओके, सो मेड ऑफ क्रस्ट और ब्रोकन एग्रीगेट्स। वही क्रस्ट स्टोन से या ब्रोकन एग्रीगेट्स को या ब्रिक ब्लैड जो बोलते हैं उसको तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे ये बनता है। और यहाँ पे क्या होता है, सी voids आर फिल्ड विद द स्क्रीनिंग एंड बाइंडिंग मटेरियल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या स्क्रीनिंग मटेरियल्स है, क्या क्या बाइंडिंग मटेरियल्स है। देखो क्रस्ट टू एग्रीगेट है, स्क्रीनर या फिलर, स्क्रीनर या फिलर मतलब जो वॉइड्स को फिल कर रहा है। ओके, ये दोनों का डिफरेंस याद रखना। स्क्रीनर और फिलर अलग है, बाइंडर इज अनदर। ओके, स्क्रीनर और फिलर मींस वी आर फिलिंग द वॉइड्स। एग्रीगेट्स में इंटरलॉक हो सकता है अच्छा, लेकिन फिर भी देयर विल बी सम वॉइड्स।
सो उसको voids को fill करने के लिए the material that we are using is the filler material. तो क्या है वो, clay या sand हो सकता है, ओके। और दूसरा है बाइंडर। बाइंडर मतलब कि सबको एक साथ बाइंड करके रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग के बीच में बॉन्डिंग नहीं है तो यू कैन नॉट, यू विल सिंगल तुम लोग टैकल नहीं कर पाओगे स्ट्रेस को, प्रॉब्लम्स को, राइट। अगर बोलते ना यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, सेम ऐसा यहाँ पे भी सबको एक साथ बाइंड करके रखना पड़ेगा, ओके। सो बाइंडर वी आर यूजिंग विच आर जिस स्टोन डस्ट, ओके। सो लेड इन फेज मैनर। फेज मैनर मतलब है कि मतलब एक साथ हम सब बिठा देंगे, वैसा नहीं है। कुछ लेंथ हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे वो सब दे दिया। देखो वहां से रोलर आ रहा है, वहां का टॉप सरफेस होगा, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ वो डाल रहे हैं हम लोग, स्क्रीनिंग और ये सब डाल रहे हैं, रोलिंग नहीं हो रहा है। सो इट इज इन फेज, ठीक है, फेज मैनर में ये कंस्ट्रक्ट करते आएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग सबको बाइंड कैसे कर रहे हैं, यूजिंग वाटर। वी आर स्प्रेइंग वाटर। यहाँ पे देखो पानी दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो वी आर स्प्रेइंग वाटर, देन उसके बाद वी आर अप्लाइंग रोलर, कंपैक्टिंग विद द हेल्प ऑफ रोलर, ओके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वाटर बाउंड मैकाडम। पानी इसको छिड़क छिड़क के हम लोग रोल करके इसको बाउंड कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड वाटर बाउंड मैकाडम, ओके। अब दूसरा क्या है, एज आई सेड वेट मिक्स मैकाडम, ओके। सी वेट मिक्स मैकाडम का मतलब क्या हो सकता है, एनीवन? वेट मिक्स इज व्हाट? इट इज मिक्स, वेट मिक्स तो प्रीमिक्स भी बोल सकते तुम लोग, मतलब पहले से मिक्स करके आ गए हम लोग, सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइड में जाके ले कर दे रहे हैं वो प्रीमिक्स मैकाडम को, फिर उसके बाद रोलर चपा दे रहे हैं, ओके। सो दैट इज द वेट मिक्स। सो दिस इज द न्यूअर मिक्स इन विच दो पीरियड, ठीक है सर। see newer mix in which aggregates and binding materials are pre-mixed, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, what is the difference between wet water bound and pre-mix? What we are doing here, we are laying, मतलब पहले एग्रीगेट डाला, कोर्स एग्रीगेट, फिर स्क्रीनर डाला, ठीक है, फिर बाइंडर डाल के हम वहां पर हम लोग ले करके पानी छिड़क के रोल कर रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वाटर बाउंड मैकाडम, ठीक है। साइड में जाके हम लोग फेज वाइज कर रहे हैं, बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑलरेडी मिक्सिंग, मतलब सबको मिक्स करके डाल दिया पहले ही, एग्रीगेट बाइंडिंग सफर को, ठीक है। फिर बैचिंग प्लांट या कंक्रीट मिक्सिंग जो मशीन होता है उसमें लेकर जाएंगे और साइड में ऐसे देखो प्लेस कर दे रहे हैं। यहाँ पे पूरा प्री मिक्स है, ठीक है, वाटर के साथ सब कुछ मिक्स करके यहाँ पे हम ले कर दे रहे हैं, लेइंग ऑफ WMM, ओके। सो ब्रॉट टू द साइड फॉर ओवरलेइंग एंड रोलिंग। अब यहाँ पे ले कर दिया, फिर वी आर रोलिंग, ठीक है। तो सरफेस ऑफ WMM आफ्टर रोलिंग ऐसा दिखता है, और तुम लोग का WBM का ऐसा दिखता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेट मिक्स मैकाडम एंड WBM। आई थिंक इट इज क्लियर। दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो तो क्या है, कोई भी एक जन, व्हाट शुड बी द डिफरेंस? अगर कोई पूछेगा যেটা ডব্লিউএম হবে ওটা हाँ बोलो। একটা থাকবে ম্যাম, যেটা আমি প্রিমিক্স করে আনবো, আর একটা হচ্ছে মানে অন দ্য স্পট সাইটেই মানে ওটাকে করব। ओके, सो मेन यही है कि कैसे ले कर रहे हम लोग, ओके। सो एंड बोथ आर व्हाट, बोथ आर योर बेस कोर्स, ठीक है। जब बेस कोर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें ये वाला आएगा वेट मिक्स या अब जो इम्पोर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एकदम अच्छा क्वालिटी का एग्रीगेट यूज करके वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट लेयर, दैट इज योर सरफेस कोर्स, बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ट्रैफिक लोड, ठीक है। सबसे ज्यादा लोड वहीं पर ही आएगा, व्हाई? बिकॉज हम लोग जानते हैं टॉप लेयर में तुम्हारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया है वेरी स्मॉल होता है, ठीक। सपोज दिस इज योर व्हील लोड, ओके। सो दिस एरिया इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है, जितना कम एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, उतना ज्यादा ही तुम्हारा स्ट्रेस होगा, ठीक है। सो वी हैव टू यूज हाई क्वालिटी मटेरियल्स। अब यहाँ पे हाई क्वालिटी मतलब है जिसका क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट वैल्यू कम होना चाहिए ना कि ज्यादा होना चाहिए, बोलो तो, या एब्रेशन वैल्यू ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? यहाँ पे जो भी मटेरियल्स वी आर यूजिंग, तो कम होता है। यस,
मतलब कम एब्रेशन वैल्यू मतलब है कि कितना परसेंटेज डिसइंटीग्रेट हुआ, राइट, बिकॉज ऑफ एब्रेसिव लोड। इम्पैक्ट वैल्यू मतलब है कितना परसेंटेज एग्रीगेट टूटा बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट लोड। तो जितना ज्यादा टूटेगा मतलब प्रॉपर्टी इज वेरी पुअर क्वालिटी, जितना कम टूटेगा मतलब वेरी गुड क्वालिटी। सो कम टूटेगा मतलब क्या, परसेंटेज भी कम होगा। सो योर इम्पैक्ट वैल्यू विल बी लेस, एब्रेशन वैल्यू विल बी लेस। ओके, सो वैसा क्वालिटी का हमको देखना है कि अगर इम्पैक्ट वैल्यू बहुत अच्छा है, मतलब कम वैल्यू है या एवरेज वैल्यू कम है, सो वी कैन प्रोवाइड दोस मटेरियल और दोस काइंड ऑफ एग्रीगेट्स इन द टॉप लेयर। फिर सब्सिक्वेंटली हम जितना नीचे की तरफ जाएगा ये वैल्यू भी इंक्रीज करता जाएगा। ओके, नाउ contains the highest quality, ठीक है, minimize the abrasion of load। obviously abrasion मतलब क्या, देखो this is the wheel, ठीक है, wheel का अपना एक टेक्सचर है, अपना एक मटेरियल से बनता है, रोड का अलग सा मटेरियल है, सो दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, सो बोथ द मटेरियल्स आर डिफरेंट, सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन of these two different materials there will be some disintegration, ठीक है, तो या उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं abrasion force। that is the friction between the material, friction between the क्या बोलते हैं object of having different materials, okay, consisting of different materials। ये है provides characteristics apart from strength। apart from strength what are the other characteristics it has to satisfy? क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम स्मूथ हो जाए, ऐसा भी नहीं है, फ्रिक्शन भी देना चाहिए, राइट। कब जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तुम्हारा गाड़ी रुकेगा नहीं, सामने वाला जो उसमें जाके धक्का लग जाएगा, राइट। सो इट शुड प्रोवाइड फ्रिक्शन ऑल्सो। स्मूथ तो होना चाहिए, स्मूथ मतलब क्या है, यहाँ पे अंडुलेशंस नहीं होना चाहिए। अंडुलेशंस मतलब ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए रास्ते में। दैट इन दैट केस हम लोग बोलते हैं कि इसमें ये स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनका जो प्रॉपर्टी है, इट्स स्किडिंग जो प्रॉपर्टी है, स्क्रीन फ्रिक्शन या इसका जो फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी है वो होना चाहिए, एप्रोप्रिएट फ्रिक्शन होना चाहिए, जिससे कि अगर ब्रेक लगेगा तो मतलब जितना रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, उस ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसमें जाके वो रुक जाए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। दूसरा है स्मूथनेस। दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, फ्रिक्शन भी बोला है, स्मूथ भी बोला है, बोथ आर डिफरेंट। स्मूथनेस मतलब अंडुलेशंस नहीं होना चाहिए कि ऐसा मतलब बर्पिंग जो होता है ना, जर्किंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। नॉइज कंट्रोल, रट एंड सोविंग, सी ऑल दिस आर द फेलियर्स, ठीक है, फेलियर ऑफ द पेवमेंट। वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स, वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय रट, व्हाट डू यू मीन बाय सोविंग, ये सब क्या है ये हम लोग जानेंगे, ओके। सो इट शुड बी रट रेजिस्टेंस एंड सोविंग रेजिस्टेंस। दूसरा है प्रॉपर ड्रेनेज तो देना ही चाहिए। ऑल्सो इट शुड बी वाटर प्रूफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब तुम्हारा स्लोप तो होना चाहिए, दैट इज अगेन पेवमेंट डिजाइन, नॉट पेवमेंट डिजाइन, इट कम्स अंडर योर ज्योमेट्रिक डिजाइन, बट ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए कि वो वाटर रेजिस्टेंट हो, मतलब कि पानी यहाँ पे सोक एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, ओके। सो दिस आर द क्वालिटी और वी कैन से characteristics of the surface which should be provided। Now types of the pavement, एक है flexible pavement, दूसरा है rigid pavement, okay। flexible और rigid में difference क्या होगा, anyone? इतना दिन से तो पढ़ते आ रहे हो, so anyone can tell me what is the difference between this flexible and rigid? রিজিড পেভমেন্টে যেটা মানে আমরা কংক্রিট ইউজ করে থাকি, কংক্রিটের লেয়ার মানে টপ সারফেস লেভেলে যেটা কংক্রিটের লেয়ার দিয়ে থাকি জেনারেলি, আর যেটা ফ্লেক্সিবল পেভমেন্টে যেটা আমরা ওই কি বলে বিটুমিনাস লেয়ার দিয়ে থাকি। अच्छा, हाँ, सी till from your subgrade, sorry from your देखो subgrade, यहाँ पे भी subgrade है, सेम है, ठीक है। ड्रेनेज लेयर, यहाँ पे भी ड्रेनेज या सब बेस जो भी है सेम है। बेस कोर्स इसमें दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, राइट, बिकॉज रिजिड का प्रॉपर्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ अच्छा होता है कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल, तो हमको और एक लेयर देने का जरूरत नहीं भी हो सकता है, कभी कभी तुम लोग दे सकते हो बेस कोर्स को, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। और सरफेसिंग कोर्स में क्या है, हियर वी आर यूजिंग बिटुमिनस कंक्रीट, ओके, मतलब बीसी जिसको बोलते हैं बिटुमिनस कंक्रीट। अगेन कंक्रीट, व्हाई कंक्रीट इज व्हाट, मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट, सीमेंट कंक्रीट इट इज मिक्सचर ऑफ व्हाट, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। यहाँ पे भी वही है, एग्रीगेट, फाइन पार्टिकल्स एंड बिटुमिन,
सीमेंट के जगह पर यहाँ पे बिटुमिन है, इसीलिए इसको बिटुमिनस कंक्रीट बोलते हैं. ओके, और हियर व्हाट वी आर यूजिंग, बाइंडिंग मटेरियल টা ডিফারেন্স থাকে yes, binding material will be different. Okay, here we are using bitumen and here we will use cement. अब ये PCQ का मतलब है पेवमेंट क्वालिटी, PQC सॉरी, ठीक है, पेवमेंट क्वालिटी सीमेंट इसको बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस टू दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, विच इज सेमी रिजिड कंपोजिट पेवमेंट, मतलब कि कुछ पोर्शन फ्लेक्सिबल है फिर कुछ पोर्शन रिजिड रहेगा, ऐसा भी हो सकता है. ओके, अच्छा, शुड वी गिव सम ब्रेक, क्योंकि इसके बाद भी और एक पीरियड होगा, सो ब्रेक दें. হ্যাঁ কন্টিনিউ কর ম্যাম 20 মিনিট আগে ছেড়ে দিবেন বাস হয়ে যাবে বাবা এটা বেশি নেই তো, কি করব, কন্টিনিউ করুন, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে. ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি তো শেষ হবে না, আমাকে তো পড়াতে হবে, তাহলে ব্রেক করি. ঠিক আছে 5 মিনিটের ব্রেক করবে, 11:15 আসবে, অনেক আগে দেওয়া উচিত ছিল ব্রেকটা. বলো বলো ফার্স্ট. আচ্ছা, এই ক্লাসটা কত ঠিক আছে। দূর অবধি থাকবে? 50 11:50 অবধি. হুম আপনি ম্যাম শুরু করুন না, 11:30 শেষ করে দেন. হ্যাঁ আমি ওটাই বলছি, আমার 18 মিনিট হবে ক্লাস. আমাকে তো নিতে হবে না, তো আমার প্রবলেম হয়ে যাবে. ঠিক আছে, তাহলে ব্রেক নাও, একটু পরে তাহলে জয়েন করো. হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাম, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে. হুম হুম.